तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे, खुशी से होंगे, मज़े से होंगे। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है कि मुझे जो है फर्स्ट मंथ का उड़ान का सैलरी मिला है। मतलब बहुत बहुत साल, बहुत महीने के बाद जो है मैं मंथली जो है जॉब के हिसाब से काम कर रहा हूँ। क्योंकि इससे पहले मैं लास्ट शायद जो पे स्लिप मुझे मिला था, जॉब का पे स्लिप, वो मुझे मिला था अमेजन में। उसके बाद मिला था पेटीएम में, 197 कंपनी था, तो पेटीएम में मिला था और वो भी सेल्स का ही था, फील्ड वर्क था। उसके बाद मैं छोड़ दिया था। उसके बाद जो है मैं ये डिलीवरी का जॉब के अंदर आ गया था। आप लोगों को मालूम है, मेरा यूट्यूब चैनल के अंदर आप लोगों ने देखा होगा वीडियोस पूरा। और मैं जो है जोमेटो, स्विगी, रैपिडो, डंजो, पोर्टर, इस तरह से बहुत सारे कंपनी के अंदर मैं काम कर लिया। अभी रिसेंट फिलहाल ओला के अंदर काम कर रहा था, मतलब ओला का स्कूटी चला रहा था और मेरा फैमिली को रन कर रहा था। मेरा जो लिवलीहुड है, मेरा जो फैमिली का एक्सपेंस है, वो मैं चला रहा था। थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ, प्लानिंग का इधर उधर किया, और रात में घर में आता था 10-11-12 बजे तक उस हिसाब से। और कभी कभी बारिश में भी काम करता था। उस हिसाब से मैं सोचा कि चलो यार, नहीं, अभी जो है ये जो डिलीवरी जॉब का जो फील्ड है, मतलब जो रास्ते में काम करने का, मतलब जो एक डिलीवरी जॉब है ना, वो फील्ड को थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा एक अपग्रेड करते हैं और मंथली सैलरी की तरफ जाते हैं। क्योंकि एक टाइम पे पैसा आ जाएगा तो कुछ ना कुछ काम पे आ जाएगा। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया था एक टेलीकॉलर कि इस तरीके से उड़ान कंपनी के अंदर मार्केटिंग मैनेजर का जॉब है। हमें बोला गया था कि आपको डेली 25 शॉप के अंदर विजिट करना है। मैं उस टाइम कॉल में पूछा था, अगर मेरे पास कॉल रिकॉर्ड है ना, मैं यहाँ पे आपको सुना दूंगा, मे भी अगर है रहेगा तो। ಹಾಯ್, ನಾನು ಮಮತಾ ಅಂತ ಉಡಾನಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಲ್ವಾ? ಉಡಾನ್. ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಅದು ನಾಳೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಬರ್ತೀರಪ್ಪ? ಅದು ಏನ್ ಕೆಲಸ, ಏನ್ ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ? ಏನಿಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜರು, ಲೀಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆರ್ಡರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಉಡಾನ್ದು ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ ಆ ಆ್ಯಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಆರ್ಡರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಇರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ವರ್ಕ್. ಆಮೇಲೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೀಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವೇ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಲೀಡ್ಸ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಡೈಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಆತರ ಇದೆಯಾ? ಡೈಲಿ 20 to 25 ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಲೀಡ್ಸ್. ನಾವೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಲೀಡ್ಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟೈ ಅಪ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆರ್ಡರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಇದು ಜಾಬ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸು ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲಲ್ಲೇ ಲಾಗಿನ್, 8:30 to 6:30 ವರೆಗೂ ಲಾಗಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ. ಸ್ಯಾಲರಿ ಬಂದು 26,000 ಇರುತ್ತೆ. ECPF ಕೊಟ್ಟರೆ 22 ಪ್ಲಸ್ 4,700 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ 26, 10K ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ 32,000, 36,700 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದ್ರ ಮುಂಚೆ ಪೇಟಿಎಂ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನಿಮಿಷ ಮಾಡ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವೇ ಇದೆಲ್ಲ ತಗೊಬೇಕು, ಆನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಬೇಕು. ಬಟ್ ಇದು ಆನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ 10,000 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಟೈ ಅಪ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಹೋಗಿ ಬರೀ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಉಡಾನಿಂದ ಬಂದಿರೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಆ್ಯಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆ್ಯಪ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬೇಕು ಅಂತ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ ಕೆಲಸ, ಇನ್ನೇನು ಇರಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊ. ನಮ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಐಟಮ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರೇ ಬರ್ತಾರೆ, ಡೆಲಿವರಿ ಎಲ್ಲ? ಹೌದು ಹೌದು. ಡೈಲಿ ಒಂದು 25 ಅಂಗಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? 25 ಡೈಲಿ 25 ಇರಲ್ಲ. ಇವತ್ತು 25 ಇರೋ, ನಾಳೆ 23 ಆಗ್ಬೋದು, 24 ಆಗ್ಬೋದು. ಡೈಲಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ 10K ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಫೀ ಕೊಡೋದು ನಮಗೆ. ಸಂಡೇ ರಜೆ ಇರುತ್ತೆ. ಜೊಮ್ಯಾಟೊ, ಸ್ವಿಗ್ಗಿ, ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಈ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಬನ್ನಿ ನಾಳೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಓಕೆನಾ? रेज्यूम तो ओडे शूज हाकोंड बन्नी. मैं पूछा भी था उसको, वो लेडी को, कि कोई टारगेट तो नहीं है। क्योंकि मुझे मालूम है कि वो पेटीएम में जब काम करता था, उसका टॉर्चर मुझे बहुत अच्छा तरीके से मालूम है कि डेली का डेली जो है मीटिंग करना, डेली का डेली पूछना और गालियाँ देना, ये वो तुम सभी कर रहे हैं, तुम्हें क्यों नहीं होता है, टॉर्चर करके लोगों को काम करवाना। जो फील्ड सेल्स का जो जॉब है, लोग मतलब कंपनी, मतलब लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ता, बट हम जो है लोगों के पास जाके कन्विंस करके जो है मतलब सेल्स कंपनी के लिए जनरेट करना पड़ता है। तो एक टाइम था जब पेटीएम में मुझे अच्छा सैलरी भी देता था उस टाइम के हिसाब से, आज से शायद 4-5 साल पहले। तो सैलरी उस टाइम पे ज़्यादा अच्छा था, 18,000 कुछ था। तो उस सैलरी के अंदर भी 18,000 जो सैलरी था, उस सैलरी के अंदर भी मुझे जो है, मुझे मतलब हमारा जो हमारा टीम है बहुत ही ज़्यादा तरीके से जो है हमें टॉर्चर दिया जाता था। ठीक है, कि इतना करो उतना करो, अगर नहीं कर पाता तो डेली का डेली कंप्लेन है, प्रॉब्लम है। तो उस हिसाब से मैं जो है इसको पूछा था कि देखो, अगर कोई टारगेट है तो मुझे मत बताओ,
मैं टारगेट का काम नहीं कर सकता। उन्होंने बोला था कि देखो हम आपको लिस्ट देंगे, जो भी शॉप हमारा पास जो है रजिस्टर्ड है उड़ान कंपनी के अंदर, उसी शॉप का आपको लिस्ट दिया जाएगा, आपको फ़ोन में डेली आ जाएगा, उस लिस्ट आ जाएगा। उस लिस्ट के ऊपर हिसाब करके आपको डेली का डेली 25 शॉप्स में विजिट करना है। मॉर्निंग 8:30 लॉगिन करना है और शाम को 6:30 तक लॉग आउट करना है। मॉर्निंग 8:30 टू 6:30 तक आपको लॉगिन में रहना है। बीच में आपका खाना पीना आप खा सकते हो। टोटल टाइम जो निकलता है वो निकलता है 10 घंटा। 10 घंटा आपको जो है फील्ड में रहना है। बाकी 25 आवर्स आपको जो है 25 शॉप में आपको विजिट करना है और ऑर्डर लेना है। बट जब नेक्स्ट दिन जब हम लोगों ने ट्रेनिंग में गए थे, सिलेक्ट होने के बाद जब नेक्स्ट दिन ट्रेनिंग में गए थे, उन्होंने बोला था, जो ट्रेनर थे उन्होंने बताया था कि मिनिमम 35 शॉप्स आपको देते हैं। मतलब ज़्यादा है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, 25, 30, 35, मैक्सिमम आपको 35 शॉप्स देंगे। उस शॉप्स के अंदर विजिट करना है और ऑर्डर डलवाना है। तो शॉप्स के अंदर विजिट करना तो ठीक है, बट नेक्स्ट और जिस दिन का प्रैक्टिकल जो ट्रेनिंग था उस टाइम पे हमने सुना था, जो फील्ड ट्रेनिंग में हम गए थे किसी एग्जिस्टिंग जो पहले से ही एमएम का काम कर रहा है उसके साथ गया था। उन्होंने बोला था भाई देख टारगेट बहुत ज़्यादा है। एक एमएम तो ऐसा ही बोला था कि भाई अगर तू फैमिली वाला है तो इस काम के अंदर मत आ, ये काम छोड़ के दूसरा काम कर ले, क्योंकि टॉर्चर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है, डेली का डेली टॉर्चर भी है, कॉल वगैरह बहुत ज़्यादा आता है, इस तरीके से आता है करके बहुत बोला था। पर मैं बोला कि अगर आ ही गया हूँ तो इस महीने का सैलरी तो देख लेते हैं, क्योंकि मैंने जब ज्वाइनिंग किया था, मेरा जो सिलेक्शन प्रोसेस था, जिस दिन मेरा इंटरव्यू था वो था 14 अगस्त को। 15 अगस्त को छुट्टी हो जाता है, 16 तारीख भी छुट्टी है, 17, 18 भी छुट्टी था, 4 दिन कंटिन्यूस जो है बैंगलोर का छुट्टी था। तो 19 तारीख का मंडे है, तो 19 तारीख से मेरा काम है, 19 से मेरा काम है 31 अगस्त तक। 31 अगस्त 2024 तक मेरा जो है जॉब था। इस महीने का सैलरी सिस्टम था। उससे मेरे हिसाब से कि 18 तारीख से जो है 31 मीन्स जो है मैंने टोटल 13 दिन काम किया हूँ। उस 13 दिन का काम के अंदर बहुत कुछ सीखा हूँ, बहुत कुछ जाना हूँ। लोगों को कन्विंस तो करना आता नहीं है, फिर लोग तो ऑर्डर देते नहीं है। वो लोग तो इस तरीके से ही बोलता है कि भाई मत आ दुकान में, मत आ। पाल्स फार्मा करके दुकान है हमारा लोकेशन में। वो आज गया तो मतलब समझ में नहीं आया किस तरीके से गुस्सा में था वो बोला ये रे डेली भरती रहा, क्यों तुम डेली आ जाते हो और हमारे ऊपर आके टॉर्चर करते हो और कुछ ऑर्डर ले लो, कुछ ऑर्डर डाल दो, मिनिमम ऑर्डर डाल दो, इस तरीके से क्यों कंप्लेन, इस तरीके से क्यों आप आते हो। एक काम करो, मेरे को नहीं चाहिए भाई आपका टेंशन नहीं चाहिए, आप ऑर्डर मेरा वो डिलीट कर दो, आपका उड़ान सिस्टम से मेरा नाम ही डिलीट कर दो, मेरा दुकान का नाम ही डिलीट कर दो। तो जब मैं मेरा मैनेजर को पूछा, उन्होंने बोला कि देखो ऐसा कैसा होता नहीं है, आप एक काम करो, इसके बाद से उसको कुछ पूछने का ज़रूरत नहीं है, ऐसा ही जो है चेक इन चेकआउट करके आ जाओ। और एक दुकानदार के पास गया था, वो बोला उड़ान दो सौसाने वाला, मतलब उड़ान का मुझे चाहिए ही नहीं, इस तरीके से बोल दिया। और एक 2-3 जगह में देखा, मेरा जो सिस्टम है कि मार्केट में बहुत सारे कंपनीज है, जम्बोटेल है, निंजा कार्ट है, मेट्रो होलसेल है, वहाँ पे हम उड़ान है। तो उड़ान के अंदर मैं देखा, बहुत सारे जगह में हमने देखा कि उसके अंदर रेट थोड़ा ज़्यादा है, मतलब जम्बोटेल के हिसाब से उड़ान पे थोड़ा ज़्यादा है, मेट्रो से भी थोड़ा ज़्यादा है। तो रेट ज़्यादा है ना, रेट को अगर थोड़ा सा कम कर दे तो मीन्स में भी जो है कस्टमर लेने लग जाएंगे। मैं खुद देखा हूँ, कस्टमर बोलता है कि जो बिस्किट का पैकेट है ये देखो इतना रेट है, हाँ इतना ज़्यादा रेट है, तो हमें क्या मिलेगा, कुछ तो मिलेगा ही नहीं है। बिस्किट्स में कुछ मिलता नहीं है, जूस में कुछ मिलता नहीं है। एक बंदा ने मुझे बोला था कि मैं जो है डेली का डेली मतलब डेली का डेली जब भी मैं मंगाता हूँ 10-20 केस जो है कोल्ड ड्रिंक्स मंगाता हूँ, और जो मुझे देके जाता है विदाउट टैक्स वाला जीएसटी वाला बिल देके जाता है 450 रुपये में देता है, और आपका यहाँ पे दिखा रहा है 499। तो उड़ान को हमारे साथ होता नहीं है, मतलब वो उस आप लोगों का जो रेट है ना, उस रेट के हिसाब से हमारा जमेगा नहीं, ठीक है। आप प्लीज़ मत आओ, मतलब करके बोल दिया। बहुत सारे दुकान तो ऐसे ही हमें भगा देते हैं, मतलब जाता हूँ तो बहुत सारे लोग ऐसा ही, मैंने मतलब ये हो जाता है कि आदमी आता है डेली का डेली, 3-4 आदमी क्यों आ जाता है। तो एफएमसीजी वाला एक जना, और स्टेपल्स वाला एक जना, मतलब फूड वाला एक जना, ग्रोसरीज वाला, और एक फ्रेश वाला जो वेजिटेबल्स का काम करते हैं। तो एक रूट में 3-4 बंदा आता है, उन लोगों का दिमाग ख़राब होता है। बायर्स को क्या चाहिए, कोई बंदा दिन में एक बार आओ, चाहिए हफ्ते में एक बार आओ, हमारे पास कुछ भी खाली हो जाता है हम ऑर्डर डाल देंगे। मतलब लोगों को अगर ज़्यादा भी सर्विस देने जाओगा ना तो भी लोगों का प्रॉब्लम है। तो हम जो है डेली का डेली सर्विस देने जाते हैं, सर क्या है प्रॉब्लम, कुछ ऑर्डर है तो दे दो, ये भी लोगों का प्रॉब्लम है। एक तो बंदा ऐसा बोला कि हमारा दुकान में जितना कस्टमर्स नहीं आता है उतना तो आप लोग ही आते हो, जो डिस्ट्रीब्यूटर लोग हैं उतना तो आप लोग ही आते हो।
खैर ये तो था प्रॉब्लम्स रूट में, मतलब रूट में काम करने का टाइम पे जो हमें फेस करने पड़ता है, वो प्रॉब्लम का मैं बता दिया। पर और एक प्रॉब्लम क्या है, डेली का डेली सेल्स का जनरेट करो, उड़ान का कुछ पर्सनल ब्रांड्स भी है तो उसको भी जनरेट करो, उसको भी कन्विंस करो कस्टमर को, और 65,000 का सेल लेके आओ मिनिमम डेली का। वो एक टारगेट रहता है बट होता नहीं तो कुछ प्रॉब्लम भी होता नहीं उतना ज़्यादा। एक टारगेट पैरामीटर तो है बट नहीं हुआ तो भी टीएल जो है वो थोड़ा बहुत मैनेज कर लेता है। 65,000 का सेल डेली करना है, अगर आप करके देते हो तो आप जो है बहुत अच्छा एमएम हो, मार्केटर मैनेजर हो, मार्केटिंग मैनेजर हो, और ये बोलते हैं कि मार्केट मैनेजर हो आप, ठीक है। तो मार्केटिंग मैनेजर और मार्केट मैनेजर थोड़ा बहुत अलग हो सकता है। बाकी यार इस वीडियो में इसीलिए बना रहा था कि कल का दिन में मैं जो है रिलायंस में गया था और बहुत का सारे कुछ जो है सामान वगैरह लेके आया, एक साथ सैलरी मिला था तो बहुत सारे मतलब 4,500 का प्रोडक्ट खरीद लिया। तो 4,500 का प्रोडक्ट खरीद लिया और एज ए यूट्यूबर होने के नाते मेरा वही काम रहता है, कुछ भी चीज़ नया चीज़ जब मैं इस्तेमाल करता हूँ तो उसको वीडियो बनाता हूँ। तो मेरा पास पड़ा था और मैं कल दूध पेड़ा का वीडियो बना रहा था, वो वीडियो मेरा यूट्यूब चैनल में है, फेसबुक में है, आप लोग देख सकते हो। तो मेरे को उस टाइम पे एक बात बोला कि मेरा को सैलरी आया, और सैलरी बोलते ही मुझे समझ में आया कि इस महीने में उड़ान में मुझे कितना सैलरी आया। तो सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर रखते हैं, आईने के जैसा साफ रखते हैं। मेरा ये चैनल जो है या फिर ये जो मेरा वीडियो आप देख रहे हो जहाँ पे, ये मेरा आईना का तरफ है, मतलब आईना के जैसा है। मुझे बचपन में जो है डायरी लिखने का बहुत शौक था। उस डायरी लिखने का शौक को मैं ये बातों के स्टोरी टेलिंग में या फिर बात करते करते जो समझाने का आपको मेरा जो काम है मैं शुरू किया। तो उस हिसाब से जो है मेरा 19 से 31 अगस्त तक टोटल मेरा अटेंडेंस जो था वो था 13 दिन का, और 13 दिन का मुझे सैलरी जो मिला है वो मिला है 9,383 समथिंग, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, आप देख सकते हो एग्जैक्ट स्क्रीनशॉट, और जो मुझे सैलरी स्लिप मिला है वो भी यहाँ पे डाल दूंगा, आप लोग चेक करके देख लाना कि मुझे कितना मिलेगा। सैलरी जो बताया था वो बताया था कि ग्रॉस सैलरी जो है 22,800 ऐसे कुछ बोला था, ग्रॉस सैलरी 22,800 या फिर 22,000 आपको जो है इन हैंड सैलरी आएगा बोला था। एक चीज़ समझ में आ रहा है कि अगर 15,000 भी सैलरी देता था ना और टारगेट नहीं रहता था तो भी सही था, मतलब सैलरी मत कम कर दो, 15,000 सैलरी दो मगर टारगेट मत रखो। डेली जाओ भाई, क्या ऑर्डर है नहीं है तो सुन चुप के आ जाओ, मगर कन्विंस करके ऑर्डर डलवाना ही है, टारगेट करवाना ही है, इस तरीके से है ना। मतलब उस हिसाब से सैलरी बहुत ज़्यादा दे रहा है, मतलब 22,000 जो सैलरी है बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा है इंडस्ट्री रेट में। अगर 15,000 सैलरी देता था उस हिसाब से ठीक था, बट जो 22,000 सैलरी दे रहा है और उस हिसाब से डेली का 60,000 सेल लेके आओ, खुद का जो डेली ब्रांड्स का जो जूस है, ईसा फूड्स का जो चिप्स है और बहुत सारे कुछ है, वो सब कुछ कन्विंस करो लोगों को। लोग जो है उड़ान को ही यूज टू होना और उड़ान में ऑर्डर्स वगैरह करना, इस तरीके से जो है टॉर्चर मुझे बहुत ही लग रहा है भाई। पहला मंथ में जो आधा महीना काम किया, 13 दिन का सैलरी मिला, कितना मिला 9,300 समथिंग मिला, एक साथ पैसा आया, 5,000 रुपये का घर का भाड़ा दे दिया, वाइफ को दिया कि 5,000 रुपये मेरे तरफ से रख लो, और वो 2,000 देता है, टोटल 7,000 मेरा घर का भाड़ा है। और बाकी का 300 रुपये जो है करेंट का बिल दे दिया, और बाकी का 300 रुपये जो है पानी का बिल दे दिया। बाकी रहा जितना का सारे कुछ पैसा था, 4,000 समथिंग पैसा था। सुपरमार्केट में गया रिलायंस में, 4,100 का जो है प्रोडक्ट खरीद के आ गया। मैं, मेरा बेटी, मेरा मम्मी जो है 2 एग रोल खाया और चाय पी लिया, बस। उस पूरा पैसा एकदम ख़त्म। उसी जो सैलरी आया, जिस दिन आया सैलरी आया था मुझे 30 अगस्त को, और 1 तारीख को हमने पूरा पैसा ख़त्म कर दिया। फ्राइडे के दिन में सैलरी आया, सैटरडे दिन में काम था, संडे के दिन में घूमने गया, थोड़ा आउटिंग में गया, फैमिली डेटिंग में गया। मैं, मेरा बेटी, मेरा माँ पूरा के पूरा पैसा ख़त्म करके आ गए। अभी 1 महीना तक मूँछ लेको बोलता है उर्दू में लैंग्वेज, मूँछ लेकर रह जाओ, टिका मुझको न रह जाओ। तो उस हिसाब से 1 महीना पैसा नहीं है हाथ में। कभी कभी दुकान में हम जाते हैं ना तो वहाँ पे क्या होता है, लोगों के साथ बातचीत शुरू करने के लिए भी हम क्या करते हैं, एक चाय दे दियो, चाय दो, चाय पीते लग जाता है। कभी कभी हमारा बंदा भी है, वो एक सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद कुछ ना कुछ छोटा मोटा जो भी कुछ 5 रुपये का 2 रुपये बिस्किट वगैरह खाते खाते जो है फिर शुरू करते हैं कि उड़ान से आया है भैया। मतलब उसका भी लगना चाहिए कि हाँ ये बंदा मेरे लिए कुछ काम का है, मेरा दुकान में आया तो कुछ ना कुछ तो मेरा सामान लिया है ना। उसके बाद एक बॉन्डिंग शुरू होता है, एक जो है फैमिली रिलेशनशिप शुरू होता है। तो उस हिसाब से भी खर्चा है, डेली का डेली 100-200 रुपये खर्चा है, 110 रुपये खर्चा हो जाता है। वो पैसा कहाँ से आएगा? मतलब 1 महीने में आप अगर मार्केटिंग मैनेजर के हिसाब से रहोगे, और मेरे जिससे बोला कि एक दुकान में जाके चाय पीना या फिर 2-3 रुपये का 5 रुपये का जो बिस्किट है, चॉकलेट का खाना, तो उस हिसाब से मतलब डेली का तो 100-200 रुपये आपको रखना पड़ेगा जेब में। महीने का
4,000 4,500 ऐसे ही निकल जाएगा। अच्छा, और एक चीज़ मैंने सुना था कि उड़ान में जो है जो सैलरी सिस्टम जो है वो है कि महीने का लास्ट में आपको पैसा आ जाता है। मैंने पहले सोचा था कि हम जो है ऑन रोल वाला बंदा है, बाद में देखा कि आसान जॉब से मुझे जो हम लोगों जो है हायरिंग किया गया था, मतलब कंसल्टेंसी के थ्रू ही हायरिंग किया गया था। 3 महीना अगर आपने उड़ान के अंदर काम कर दिया कंसल्टेंसी के थ्रू, उसके बाद आप जो है एक उड़ान एसोसिएट्स बनते हो। मीन्स तभी भी आप जो है उड़ान एसोसिएट रहते हो, आप जो है हम उड़ान पार्टनर है। 3 महीने के बाद आप जो है उड़ान एसोसिएट बनते हो। अगर आप ठीक से काम किया, अगर आपका परफॉर्मेंस ठीक है, अगर ये पूरा समस्या आप झेल सकते हो। कभी कभी ऐसा इतना मेरा मेंटल डिप्रेशन आ जाता है, मतलब काम करते करते 6:30 बजे के बाद जब घर में आता हूँ ना, मुझे लगता है सो जाऊँ। उसके बाद 1-2 घंटा सोने के बाद थोड़ा सा मेंटल जो है ठंडा हो जाए, उसके बाद उठ के थोड़ा बहुत मैं यूट्यूब का काम कर सकता हूँ। तो 3 महीने के बाद अब जो है उड़ान एसोसिएट बनते हो, और फिर 3 महीने के बाद मतलब 6 महीना काम कर लिया उड़ान में एज ए मार्केटिंग मैनेजर, फिर जाके आप जो है उड़ान में ऑन रोल में आते हो। एक बंदा है जो कि ग्रोसरीज में काम कर रहा है मेरा ये लोकेशन में, वो जो है अभी 1.5 साल से काम कर रहा है, 1.5 ईयर से जो है वो काम कर रहा है। तो उसके पास उड़ान का पूरा आईडी कार्ड वगैरह भी है, और उसको जो है लोगों ने उसको जो है फेस वैल्यू पहचान गया है कि बंदा उड़ान से आया है, गए ही तो उसको कुछ ना कुछ ऑर्डर दे देता है। उसको मालूम है कितना ऑर्डर देना है, क्या करना है, वो ठीक से मालूम है। और सारे मैसेज में बहुत सारे कुछ चीज़ जो है पॉइंट्स मैं यहाँ पे इस वीडियो में बोलने का भूल गया। जो ही पॉइंट्स है मैं उड़ान का मार्केटिंग मैनेजर का जो एक वीडियो प्लेलिस्ट बनाऊंगा, आप लोग वहाँ पे देख सकते हो, और पूरा डिटेल्स जो है इसका इस जॉब के बारे में आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा। बाकी अगर किसी को भी करना है उड़ान का एज ए मार्केटिंग मैनेजर का जॉब करना है, तो आप लोग जो है वेलकम हो, आप लोग मुझे बोल सकते हो, मैं आपको रेफर कर सकता हूँ, आपका ही लोकेशन में काम मिल जाएगा। अगर आप बेंगलोर में से हो तो हर कोई लोकेशन पे आपको काम मिल जाएगा, आपका ही जो लोकेशन है वहाँ पे काम आपको मिल जाएगा एज ए मार्केटिंग मैनेजर का जॉब। सुबह में 8:30 से लेकर शाम को 6:30 तक काम करना है। 22,000 आपको ग्रॉस सैलरी मिलेगा। फर्स्ट का 6 महीना आपको ही खाली इंश्योरेंस मिलेगा, और 6 महीने के बाद आपको आपका फैमिली को आता है, आपका वाइफ को, आपका बेटा बेटी को चार्ज देने का जो है इंश्योरेंस आएगा। अच्छा, पीएफ के लिए कुछ 1,000 रुपये काट लेता है। टोटल हमारा जो सैलरी है वो कुछ 28,000 का बोला था, या फिर 26,000 कुछ बोला था। 22,000 ग्रॉस एंड सैलरी है। बाकी का 180 रुपीज़ पर डे जो है डीए है, मतलब ट्रैवल अलाउंस है। 180 रुपीज़ पर डे का ट्रैवल अलाउंस है। वो जब तक आपने आपका एमएम ऐप में, मतलब उड़ान का मार्केटिंग मैनेजर ऐप में जब तक वो आपका रूट असाइन हो गया ना, तभी जाके आपको पहला दिन से जब आप यहाँ पे मार्केट में जाते हो, विजिट करना शुरू करते हो, तभी उसी दिन से आपको 180 रुपीज़ मिलना शुरू होता है। नहीं, इससे पहले जब ट्रेनिंग पीरियड में रहते हो, ट्रेनिंग में ऑफिस जाते हो और ट्रेनिंग पीरियड में रहते हो, वो सभी दिनों में आपको ट्रैवल अलाउंस नहीं मिलेगा करके मेरा एक दोस्त बोला है। मुझे कब मिलेगा, मतलब नेक्स्ट महीने में और भी क्लियर कट मालूम चल जाएगा। 180 रुपीज़ में भी कुछ ना कुछ हो जाता है। और एक बात है कि डेली का डेली आपको जो है मिनिमम से मिनिमम और मिनिमम मैक्सिमम 60 किलोमीटर आपको यहाँ पे ट्रैवल करना पड़ेगा। मतलब घर से निकल के और घर तक जाते हुए और रूट में रहते हुए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 60 किलोमीटर का ही आपको रूट मिलेगा। ठीक है, 60 किलोमीटर गाड़ी ट्रैवल करना। तो इस हिसाब से अगर 180 रुपीज़ देता है तो ठीक ठाक है, मतलब डेली का तो निकल जाएगा। मतलब 3 रुपये गाड़ी का अगर पेट्रोल है, मतलब आपके पास अगर स्कूटी है, होंडा एक्टिव है, इस तरीके से अगर कोई स्कूटी है तो आपको 2 रुपये 3 रुपये का पेट्रोल माइलेज देता है गाड़ी, तो इस हिसाब से आपको चल जाएगा। बाकी यहाँ पे और एक 10,000 तक आप एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो, डेली का टारगेट रहता है। और पीएनजी का स्कीम रहता है, पीएनजी कंपनी का, आईटीसी का स्कीम रहता है, कोका कोला कंपनी का स्कीम रहता है, एक बुलेट प्रोग्राम करके होता है, उसको भी अगर आप करते हो तो हर वीक अगर आपने उसमें भी 3rd रैंक अचीव किया तो उसमें भी आपको 1,000 रुपये करके मिल जाता है। तो ये पूरा मिला के एक्स्ट्रा आप 10,000 तक इनकम कर सकते हो। 10,000 अप टू 10,000 जो है आप इंसेंटिव के तौर पर कमा सकते हो। तो जिसने मुझे हायर किया था उन्होंने बताई थी कि आप जो है महीने का एंड में 1 महीना पूरा काम कर लिया तो आप एटलीस्ट 30,000 तो आप कमा सकते हो। खैर, ये तो मेरा ये हाफ मंथ का सैलरी था, 13 दिन का सैलरी था, 9,300 समथिंग। तो मैं इस महीने में जो महीना शुरू हो गया, आज जो है 3 सितंबर है, अभी का जो टाइम है वो है 7 बज रहा है। आज का जो डेट है वो है 3 सितंबर 2024। तो इस महीने पूरा मैं काम करूंगा, इस सितंबर 2024 में पूरा काम करूंगा, कोशिश करूंगा सिस्टम से निकल नहीं जाऊं, इस तरीके से काम करने की कोशिश करूंगा। अगर मुझे निकाल दे तो कुछ बोल नहीं सकता, निकल नहीं दिया, अगर उन लोगों ने सह लिया तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि 1-2 महीने तक सह लेते हैं। और 21 डेज अगर आप एक मार्केट के अंदर रहोगे, मतलब 3 हफ्ता 3 वीक अगर आपने एक मार्केट के अंदर रहोगे तो आपको ऑटोमेटिकली जो है जो दुकानदार है वो आपको ऑर्डर देना शुरू कर देता है। मतलब आपको एक फेस वैल्यू हो जाता है, उन लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है, तो आपको ऑर्डर देना
शुरू हो जाता है, आपको ऑर्डर मिलना शुरू हो जाता है। यहाँ पे 1-2 महीने तक आपको रखता है, 2-3 महीने के बाद आपको निकाल देता है। मतलब कंपनी का सिस्टम ही है, 3 महीने के बाद आपका जो है वो एग्रीमेंट खत्म हो जाता है। जो कंसल्टेंसी वालों ने आपको लेके आया था उसका 3 महीने का एक कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहता है, 3 महीने के बाद आपको निकाल देता है। हाँ, अगर आपको परफॉर्मेंस अच्छा है, आप बहुत अच्छा बिहेवियर कर रहे हो, मे भी आपको जो है रिन्यूअल कर सकते हैं आपका जो कॉन्ट्रैक्ट, और आपको रखेगा तो आप जो है फिर से काम में रहोगे। ये भाई था पूरा हिसाब। उड़ान में मेरा फर्स्ट मंथ का सैलरी आया है, पूरा मैं एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया। जो भी प्रॉब्लम था, जो भी दिक्कत था, मैं थोड़ा सा वीडियो के अंदर बताने की कोशिश किया, बट वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। और एक 2-3 वीडियोस है उड़ान मार्केटिंग मैनेजर का प्लेलिस्ट में, आप जाके चेक कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप टीचिंग, टेक केयर, बाय।